ایک بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ وطن آپ کا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر مت جائیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو اپنے وطن چھوڑ کر آئے تھے، یہ تو گرداسپور چھوڑ کر آئے تھے، یہ جودھ پور چھوڑ کر آئے تھے، یہ کانپور چھوڑ کر آئے تھے، یہ امبالہ چھوڑ کر آئے تھے، یہ پٹیالہ چھوڑ کر آئے تھے، یہ جناب دہلی چھوڑ کر آئے تھے، یہ جناب ممبئی چھوڑ کر آئے تھے۔ آج جن کے بڑوں نے پاکستان سے برے صغیر سے انگریز کو بھگایا تھا، آج ان کے وارث ان کے وطن میں جانے کے لیے کیوں تیار ہے؟ اور آج ایک سیاسی جماعت جس کا نام پی ٹی آئی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ان کے کارکنوں کو ان کی جماعت کا پرچم نہ لہرانے دینا واقعی قابل مذمت ہے، لیکن یہ اس سے بڑی بددیانتی تھی کہ جس دن کشمیر کے سودے کی بات آئی تھی اور انہیں کے لیڈر کے ہاتھ میں کشمیر کا پرچم دیا جا رہا تھا، تو یہ مکافات عمل ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی جو ہے نا دعا، وہ سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ وہ تو انتظار میں تھے اہلیان کشمیر کہ جناب کوئی محمد بن قاسم کا وارث آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا آئے گا، کوئی محمود غزنوی کا جانشین آئے گا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جس کی خاطر، جس وطن کی خاطر، جس کے نعرے پر ہم نے لاکھوں گردنیں کٹوائی تھی، آج اس کا سربراہ ایسا آدمی ہے جو جھنڈا پکڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اچھا کیوں تیار نہیں؟ اس لیے کہ مشکل آ جائے گی، جہاد کرنا پڑ جائے گا، اقتدار خطرے میں آ جائے گا، تو لو اقتدار بھی چلا گیا، مشکل بھی آ گئی، 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، تو جھنڈا کیسے پھر کوئی اٹھائے؟ آج جس جھنڈے کو تم نے جو آسانی سے اٹھایا جا سکتا تھا، آج تمہارے جھنڈے کو سختی سے چھڑوایا جا رہا ہے۔ یہ ہے مکافات عمل۔ اور آپ، یہ میں تمام احباب دیکھ رہا ہوں کہ تھکے تھکے چہرے ہیں، تھکاوٹ کے آثار ہیں، تو ذرا اس رات کے بارے میں بھی خیال کیجئے کہ آج کی رات تھی، اپنا وطن چھوڑ کر امرتسر لٹے پٹے قافلوں کے ساتھ جو گھر کے 4 افراد چلے تھے، اکیلی بہن بچی تھی، جو گھر کے 7 افراد چلے تھے، 2 بھائی بچ گئے تھے وہ بھی زخمی حالت میں، جو گھر کا کنبہ 13 افراد پہ مشتمل تھا وہ 3 پر بچا، ماں بیٹا اور آگے بہو، باقی سب رستے میں کاٹے گئے۔ ذرا ان کا بھی خیال کریں کہ وہ بابل پاکستان میں آج کی رات کیسے گزار رہے ہوں گے۔ اور وہ تو اس یقین سے آئے تھے، وہ تو اس ایقان سے آئے تھے کہ انشاءاللہ اب صبح ہوگی، اب جناب پاکستان کے اندر محمد عربی کا نظام ہوگا اور جناب صبح ہی بول بالا ہوگا۔ لیکن صبح ہوتے ہی وہ کن کی بنیاد پر آئے تھے؟ وہ اسی بنیاد پر آئے تھے کہ ہمارے بھائیوں نے کہا ہے کہ ادھر چلے آؤ، یہ مسلمانوں کا وطن ہوگا، یہ محمد عربی کے غلاموں کا وطن ہوگا۔ لیکن 76 سال سے ان مسلمانوں نے، ان دعویٰ عشق رسول کرنے والوں نے اس پاکستان کے اندر نہ نظام مصطفیٰ آنے دیا، نہ حضور کا نظام آنے دیا، نہ قرآن کا کوئی نظام آنے دیا، نہ قرآن کے احکام آنے دیے۔ اس پاکستان کے بسنے والوں نے، وہ 1857 میں کہتے تھے غدر ہوئی، لیکن باخدا جو پاکستان کے اندر غدر ہوئی، آج تک انہوں نے کہا لو ہم نے اپنی جانیں دے کر، اپنے وطن دے کر، اپنی جائیدادیں دے کر، اپنے بچے دے کر، اپنے مال دے کر، اپنے اسباب دے کر تمہیں وطن لے کر دیا ہے، چلو اٹھو محمد عربی کے نام پر اس کو کھڑا کرو پوری دنیا کے
ऊपर और इस परचम को बुलंद कर दो अब पूरी दुनिया के अंदर इस सबज हिलाली परचम को कि ये इस्लाम का परचम है। लेकिन अफसोस कि जिस परचम को हमने इस्लाम के नाम पर बुलंद करना था, आज उस पाकिस्तान के अंदर उन परचमों को बुलंद करने की कोशिश की जा रही है। वो नापाक परचम जिनकी बुनियाद इस्लाम के अहकामात से टकराती है, जो सरासर इस्लाम के मुनाफी हैं। आज उस पाकिस्तान के ऐवान बाला में और ऐवान बाला के अंदर बैठे हुए लोग जो कम से कम 5-5 बार असेंबलियों से फिर 2-3 बार सेनेट के मजे लेने के बाद जिसको पाकिस्तान का ऐवान बाला कहा जाता है, आज उस ऐवान बाला के अंदर इस्लाम को दहशतगर्द कहा जा रहा है। आज उस ऐवान बाला के अंदर इस्लाम को इंतहा पसंद कहा जा रहा है। आज उस ऐवान बाला के अंदर पाकिस्तान को और इस्लाम को शिद्दत पसंद कहा जा रहा है। अफसोस तुम ये बिल पास करने के मुंह दिखाने के काबिल हो। ये सारे 76 साल से लेकर आज तक जिनके हाथों में इक्तदार था, इनसे पूछो कि तुम्हें तो पाकिस्तान इतना बड़ा दिया गया था, तुमने पाकिस्तान को पहले 2 लाख किया, फिर तुमने कश्मीर को बेचा, फिर तुमने जनाब फाटा के अंदर और फिर ऊपर जनाब मुल्क के अंदर हवाई अड्डे दिए, फिर तुमने अपनी हमशीर को बेचा, फिर तुमने अपने कौम के बेटों को बेचा, फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो मोहसिन पाकिस्तान है उससे पूरी दुनिया के सामने ये माफी मंगवाई कि मैंने गलत काम किया है। तुम भी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल हो। तुम कहते हो कि हम इक्तदार के ज्यादा हकदार हैं, हम पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर तमाम तर पाबंदियों के बावजूद मीडिया ये कहता है कि कासिम के अब्बा ने ये किया, तो ये नहीं बताता कि जनाब रहमतुल लिल आलमीन में रहने वाले मौलवी ने भी पाकिस्तान के अंदर ये किया है। और यह नहीं बताता कि उस मर्द कलंदर जिसकी बारगाह में हम सब जमा हैं, उस मर्द कलंदर ने एक अपने ऐलान से कश्मीर के अंदर खत्म नबूवत का बिल पास कराया जो कम अज कम 50 साल से असेंबली के फ्लोर पर पड़ा हुआ था। कहा था कि हम खत्म नबूवत पर पैरा देकर आए हैं और अब हम फैजाबाद से वापस आए हैं। अगर तुमने खत्म नबूवत का बिल कश्मीर में कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया था बाबा जी के इस ऐलान से पहले, और जनाब सूरज 17 का गरूब हो रहा था और 18 का तुलू हो रहा था। बाबा जी ने कहा था सब इसको लब्बैक के नारों से अलविदा करो और हम तुम्हें अल्टीमेटम देते हैं, जल्द अज जल्द इस कश्मीर के अंदर कादियानियों को काफिर करार दो, वरना हमने जो धरना दिया है फैजाबाद के अंदर, अगला धरना मुजफ्फराबाद के अंदर होगा और लोग फैजाबाद को भूलकर मुजफ्फराबाद को याद करना शुरू कर देंगे। यह नहीं बताता कि एक शख्स की आवाज ने लाखों मुसलमानों के ईमान बचा दिए और कश्मीर के अंदर इस्लाम का खत्म नबूवत का परचम लहरा दिया। लेकिन अफसोस ये बताएंगे कि आज उस फलां ने अदाकारा ने फलां शख्स की जनाब वीडियो लीक कर दी है। भाई तुम्हारा बाजा बजाना बजता है इसलिए कि पाकिस्तान का बाजा तो बज चुका है, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर और कोई चीज तो बची नहीं, एक बाजा ही रह गया वो बजेगा। ये रोने वाली बात है, हंसने वाली बात नहीं है। इसके अलावा है क्या? पुत्र बाजा बजा के ना घर जाके पिछली का बिल भी देख लवी। हाँ, बाजा बजान तो बाद घर जाके पूछी कि असी ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे लिया सी, लेकिन मैं 76-72 जनाब चैनल खोल के देख रहा किसी एक जगह भी इस्लाम का नाम है कि नहीं। अगर ना हुए तो फिर दोबारा बाजा बजावी, क्योंकि तुहाडे को रहा कुछ नहीं बाजा बजाने के अलावा, तुहाडे को शह कोई नहीं बाजा बजाने के अलावा। इस वास्ते कि जिन्हां दी बाजियां नूं नचा दिता गया होवे वो फिर बाजा ही बजा सकते हैं। रोड के उत्ते आके ठां लाई हुई
बाह पा लाइए की होया जी, उन्हें कहा असी आजाद हो गए। मैं कहा दस तो सही केड़ी गल्लों आजाद होया, तेरा निक्का भरा तो डंकी ला के यूरोप जा रहा, तू किथों आजाद होया? वो तो 400 साहिल समंदर उत्ते जिन्होंने दफनाने वाला कोई नहीं और जिन्होंने लाशों को कफन पवाने वाला कोई नहीं। तू कहना कि जनाब मुल्तान रोड से मैं आजाद हो गया? कभी पोस्टा सही है जनाब, पूरी पट्टी तो आए रोज डंकियां लग रही हैं, जवान जा रहे हैं बाहर, क्यों जा रहे हैं? और जड़े कुर्बानियां दे के, खून दे के, माल दे के इस मुल्क के अंदर आए सन, वो आज जनाब अपनी जाना दाव पे ला के इस मुल्क तो बाहर जा रहे हैं। पोस्टा सही इन्होंने कीता की है कि खाली बाजा बजाएगा, सुबह उठ जाएगा और फिर नारा लाएगा कि जी आओ आओ, आवे जावे नून लीग आवे, आवे जावे पीपल पार्टी आवे, आवे जावे ਤੁਹਾਡਾ खान आवे। मैं कहा एक जड़ा भी आ गया तेरा बाजा ही बजेगा, मोहम्मद अरबी का दीन नहीं आएगा। ए पाकिस्तान खून दी नदियों से बढ़िया। और बाबा जी ने क्या सी परेड क्यों होंगी, जरा पूछो तो सही यार, क्यों जनाब आज जनाब सारे परचम लहराते हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ इस परचम के सामने सिर नगो के खड़ा होना चाहिए कि भाई असी कुछ नहीं किया पाकिस्तान वास्ते। और ये याद रखना, अगर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम होता तो नौजवान डंकी ना लांदा बल्कि फलस्तीन जाता। अगर पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद अरबी का दीन होता तो नौजवान डंकी ना लांदा कश्मीर जाता। अगर मोहम्मद अरबी के दीन का निजाम होता, मोहम्मद अरबी का दीन होता सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, ते नौजवान जनाब यूनान न जाता बल्कि बर्मा जाता। और इस तरह न जाता, इस तरह जाता कि दो नीम इनकी ठोकर से सहारा हो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। और ये भी याद रखना, इस्लाम अपना हिस्सा पूरा लेंदा, पूरा लेंदा पूरा। जिन्होंने क्या सी ना, क्या हो बूहे बंद कर लो जनाब, की होया जे लिख के दे दोगे एक बारी कि जनाब साडा लब्बैक ना कोई ताल्लुक नहीं, ते मैं अज देख रहा उन्होंने लिख के देना पै रहा। ते जड़ा जड़े इशारे करते सन ना कि जी ए लब्बैक वाले का घर जे, ए लब्बैक वाले का घर जे, साडा घर उत्थे ही है। साडा घर उत्थे ही है ते थानेदार उत्थे नहीं, वो तबादला करा गया। यह गल है कि नहीं? ते असी उत्थों रोजाना निकलते भी हैं ते वापस घर जाते भी हैं। साढ़े रात कोई बैठे सन तां भी सानू कोई फिक्र नहीं सी। और एक छोटी बात है, बाबा जी ने किसी ने पूछा भाई हाँ भाई, उन्होंने कहा जनाब मेरे घर पुलिस आ गई। बस बाबा जी ने कहा हाँ भाई की हुण तेरा की ख्याल है तहरीक लब्बैक बारे? उन्होंने कहा जनाब तुसी सानू अपनी इज्जत वास्ते नहीं बुलाया, हुजूर की इज्जत वास्ते बुलाया। ते मैं हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर का गुलाम हाँ। एक गल करते हो हुजूर की इज्जत वास्ते, मेरे घर वालियां कोई पाला तो घसीट के भी लै जाए, मैंने कोई परवाह नहीं, मैं हुजूर की इज्जत से उसी तरह खड़ा होया।